जय श्री राधा गोविंद देव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरि राम बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे
Ram Ram Hare Hare. सबाई बोलो ना, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Govinda Radha Govinda Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra, हरे कृष्णा। आप सब लोग हैं यहाँ पर? हरे कृष्णा। हरि बोल। So अभी मैं आप लोग को एक स्पेशल वीडियो दिखाऊंगा। We'll start the session with a special video. Okay. So you all tell me whether you are able to see it or not when I present it on my screen. Okay. Audio is clear? Audio, video? I know it's been a long time since I last spoke to you. Yes, I've been thinking about you a lot lately. And I guess I didn't have much to say until now. By the way, it's me, Purushottam. There's Radhishyam. He's 15 now, so he gets to ride the elephant. Mishai says that I could also ride up there too, but my legs are too short, so I might fall off. No one has ever fallen off the elephant before, but I don't want to be the first one. There's Baba, of course. After we left Florida, he moved us here to Mayapur because he thought this would be the best place for us to grow up. I was too young to remember much about America. All I really remember is my life here in Mayapur. I remember when I first came here, I thought this was just some nice place with cows, palm trees, and the Ganga. But slowly, I realized that this is a very special place. Now, just feels like home. Jai. So many people visit Mayapur from all over the world for the deities, for the kirtans, for the festivals, and especially for learning about Krishna consciousness. I am also learning how to be a good devotee of Krishna, so that someday you can be proud of me. Maybe you already know this, but last year I received Upanayana. That means I'm now learning puja and yajna. Not for the big deities, of course,
Not yet, at least. In school, I've made so many friends from all over the world. I am now a vice group leader, which means that I take care of all these small boys. Like, for example, Haribol. there's Vasudev. He's 7. He's from Israel. He's 8. And he's from Russia. 9. Same thing. Also in my service group is Sahadev. He likes to work in the backfield. He's 14, and he's from Ecuador. Colombia. Oh, right, Colombia. And there's the head boy, who takes care of all of us, Shrigor Babu, from Colombia. Or was it Ecuador? Don't you have some service to be doing, Guru? I know. I'm almost done. This is Vedanta from Mumbai. This is Naren from Dubai. He's the kitchen in charge. That means if breakfast is late, like it is today, then it's his fault. No thanks to you, Guru. I'm busy. Little Baldev is from Taiwan. He's really good at kirtan. Big Baldev Mashai is from Latvia. Gopal is from New Zealand. And this is Mukunda. He was born in Mayapur. All the other boys say he's a pure devotee, that he talks to Tulsi Maharani and she actually talks back to him. I don't know if that's true. That's really Sham, of course. You might be happy to know that he really loves Sanskrit. He's one of the best in the whole school. Also, I wanted to introduce you to my best friend, Baba. She's really sweet and beautiful, and she weighs about 400 kilos. That's her. And you should also meet Raju. Before his operation, he was really aggressive and tried to bite people. No, not him. That's Ramdas. I was talking about the horse. I don't ride him though. It's mostly Garanga who does. Oh, bhai. This is amazing. Sometimes I wonder, if the whole world comes to Mayapur to study your books, and if studying is so important, then why do I have to spend so much time shoveling cow dung? Adidev Maharaj was explaining why in class the other day. He said that we are not controllers or enjoyers. We are servants. Devotional service is what makes the soul happy. Every soul's duty is to serve Krishna. Service trains us to be humble, which is essential for bhakti. We're brahmacharis, so we serve our teachers, the school, and the whole ISKCON family. That includes Mother Cow and Father Bull. But even they have to serve. Even though it's tiring, in the end of the day, it's worth it. If Krishna is satisfied, then we automatically feel satisfied. And when we all cooperate together in this spirit of service, the result is really nice. But today is actually less work than normal, because it's Sunday, free day. We get to play, go for archery, and meet our parents. Today is different though, because my father is taking us somewhere really exciting. Somewhere he had promised to take us for a very long time. He said one of the directors of the TUVT, Raj Bilasuru, is taking us on a special tour of the new temple. I've never been there before. I can't wait.
Srila Prabhupada. Because I'm young and foolish, I never really appreciated what it is you gave us. I want to thank you so much for starting ISKCON Mayapur. Because of Mayapur, Krishna consciousness will last for a long time in this world. Because everyone will come here to learn about it. You started 108 temples all over the world. Today, you have over 700 centers worldwide. But now, here comes the most important center of them all, the Mayapur Chandrodaya Mandir. After the TOVP is finished, we'll be getting over 50 million visitors a year. Can you imagine all those people doing kirtan, taking prasadam and reading your books? So, Srila Prabhupada, I am trying to take up many responsibilities so I can make you happy. Please bless me so that in the future I can do something that will make you much more proud of ISKCON. But anyways, I have to sleep now because it's getting late and tomorrow is another big day. Thank you very, very much for your love and for showing me the path back to Gauri. I can't wait for tomorrow. हरी बोल। हरी बोल। हरी हरे बोल। कृष्णा। तो कैसा लगा वीडियो आपको? हरी बोल। कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। ओके, वेरी नाइस। सो वी आर ऑल टेकिंग यू देयर दिस टाइम। अब जो मायापुर का कैंप होगा, राइट, सो हम लोग आपको वहां पर लेके जा रहे हैं इस बार। तो प्लीज डोंट मिस दिस टाइम। वेरी वेरी स्पेशल कैंप विल हैपन इन मायापुर। सो मैं फिर से एक बार जस्ट एक शॉर्ट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। सो दिस इज द कैंप ऑफ मायापुर फ्रॉम 24 to 26, 3 दिन के लिए होगा। तो उसके पहले वी हैव अ फेस्टिवल, प्रीतिवर्धन फेस्टिवल इन टेम्पल। तो 23rd को फेस्टिवल स्टार्ट होगा। 23rd नाइट इवनिंग वन सेशन होगा, उसके बाद डिनर एंड देन विल बी स्टेइंग इन टेम्पल इन न्यूली क्रिएटेड IYF हॉल। 24th को वहाँ पर प्रोग्राम होगा, स्पेशल सेशन सेज बाय पेज टूवर्ड्स द स्टेज एंड वेरी स्पेशल पैनल डिस्कशन एंड देन after lunch feast we'll go to Mayapur from there. हरी बोल। तो इस बार हम लोग मायापुर में जा रहे हैं। सो विल विजिट टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम, जो भी आपने देखा है। विल गो इनसाइड दैट, देन विल वॉच अ सिनेमा ओवर देयर इन डोम थिएटर। वेरी वेरी ब्यूटीफुल डोम थिएटर इज देयर इनसाइड Mayapur, and we'll go to Goshala, Gurukul and many other new places in Mayapur this time. Okay, so it's a very good complete package of coming to ISKCON Kolkata, having festivals over there, staying in temple for one night and then from there going to Mayapur. So very very beautiful arrangement is there. So आप please miss मत कीजिएगा। So again I'm showing you the fee structure, आप लोग देख पाए right मेरे screen पे। So this is 1250 rupees this fee structure, 450 for accommodation, 400 for prasadam, transport 250 और miscellaneous 150. So first 15 स्टूडेंट्स को ही हम लोग इस बार स्पॉन्सर कर पाएंगे। लास्ट टाइम तो बहुत स्पॉन्सर किया था, बट दिस टाइम वी कैन स्पॉन्सर ओनली फर्स्ट 15, सो इट इज कमिंग टू 750 रुपीज। तो ऑलरेडी 4 लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। सो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 17th of this month। हाँ, तो पीछे मत रहिए, जल्दी जल्दी आ जाइए। स्पेशली आनंद प्रभु आए नहीं थे, आनंद प्रभु, मिथुन प्रभु, प्रणय प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु, सुवजित प्रभु, आदित्य प्रभु। सो प्लीज डोंट मिस दिस थिंग। प्रलय प्रभु, रिकी प्रभु, सुप्रतीक प्रभु, आप लोग को जरूर आइएगा, ठीक है। प्रभु मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, उन लोगों को मैं बोल के हाँ करवाया है, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना बाकी है।
राहुल प्रभु ओके नहीं हम लोग के साथ अभी, लेकिन मिठुन प्रभु है अभी। मिठुन प्रभु आप बोले हैं आप जाएंगे। Yes, ओके हरि Prabhu. बोल मिथुन प्रभु सो आप लोग एक काम कर सकते हैं ना यू कैन कम फ्रॉम 23rd itself so it will be a complete like 4-5 days का स्पेशल कैंप हो जाएगा फ्रॉम यस, मिठुन Eclipse प्रभु विल फेस्टिवल जॉइन अस फ्रॉम टू 23rd मायापुर ओनली प्रभु। हाँ सो उसका जो है दैट इज 100 rupees registration for Eclipse festival so you can register by paying 850 rupees 850 रुपए देके you can register for the entire program okay ठीक है मिथुन प्रभु चंदन प्रभु चंदन प्रभु तरुण प्रभु बताइए। चंदन प्रभु तरुण प्रभु आनंद प्रभु प्रणय प्रभु आदित्य प्रभु इस बार मिस मत कीजिएगा हाँ प्रणय प्रभु छुट्टी का टाइम है छुट्टी लेके आ जाइए आप है सेशन में अभी चंदन प्रभु है, चंदन प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं। चंदन प्रभु मिस मत कीजिएगा कैंप हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंप स्पेशल कैंप ओके सो विल स्टार्ट द सेशन देन वंस अगेन आई वेलकम यू सो आज का सेशन होगा ऑन द टॉपिक रीकिंडलिंग विजडम हाँ so this is a special topic today so first we'll recite a shloka I'll be sharing my screen and we'll recite a shloka for Bhagavad Gita 9th chapter 2nd verse प्रभु कांट सी योर स्क्रीन। yeah I'm just sharing just a minute yeah so आप सब लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं देख पा रहे राइट मेरा स्क्रीन यस प्रभु यस। ओके राज विद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगममं धर्म्यम प्रत्यक्षागमधर्म्यम् सुसुखम करतुम अव्ययम सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। so who will read the translation प्रणय प्रभु can you read the translation एक वॉइस एको हो रहा है देखिए anyone is there echoing हो रहा है वॉइस Okay, Prabhu. I am reading the translation, Prabhu. हाँ प्रभु read कीजिए This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. ओके परफेक्ट तो देखिए यहाँ पर इसे नॉलेज को बोला गया है राज विद्या ओके तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ाई करते हैं रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ाई करते हैं हम लोग देन वी स्टडी अबाउट एकॉस्टिक फिजिक्स का पढ़ाई करते हैं फिर अकाउंट्स का पढ़ाई करते हैं टिल नाउ 11 12 not there Chandan is there रमेश आज नहीं आया राइट रमेश नहीं है तरुण इज नॉट देयर राहुल इज नॉट देयर प्रसन्नजीत प्रभु इज नॉट देयर बापी प्रभु नॉट देयर या दे आर देयर Abhishek coming out now. Not receiving. I called many times. Yeah. Okay. So I told already 17th. Okay. Already told them, bro. Yeah. Yeah. Okay, so where was I? Raja Vidya Raja Guhyam. Okay. So this knowledge को it is called as Raja Vidya. Why? Because हम लोग पढ़ाई करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में
फिर फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री, एडवांस केमिस्ट्री, और उसमें क्या क्या तो रहता है, मैं देख रहा था आपके किसी बुक में, कुछ कुछ तो केमिकल स्ट्रक्चर, इतना सब पढ़ाई करते हैं। देन माइंड के बारे में पढ़ाई करते हैं हम लोग साइकोलॉजी में। तो इतना सब एडवांस पढ़ाई करते हैं, पर यहाँ पर बोला गया है दिस इज राज्य विद्या। क्यों क्यों बोला गया राज्य विद्या? कोई बोल सकते हैं? मतलब ये विद्या का राजा है, तभी जितना ज्ञान है सबका किंग। ओके, तो क्यों सबका किंग है? ये तो भगवान का मुखबिंदु से निकला हुआ है। दिस नॉलेज इज इटर्नल। ये नॉलेज राज विद्या इसलिए है बिकॉज दिस टेल्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल। ओके, हम कौन है, भगवान कौन है, उसके बारे में हमें ये बोलता है। दैट्स व्हाई दिस नॉलेज इज कॉल्ड एज राज विद्या। ठीक है, तो ये तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ ही है इस राज विद्या का। आप सोलो सेशन अनंत लोहिया प्रभु आप म्यूट कर सकते हैं क्या? ओके, सो जैसे हम लोग कैंप में भी गए थे, वी कम टू वॉइस, वी आर कमिंग टू टेम्पल, सो वी ईट टेस्टी प्रसादम, वी आर हैप्पी विद द प्रसादम, है ना। वी देन डांस, वी सिंग वेरी ब्यूटीफुली, स्पेशल कीर्तन होता है, एंड वी गो टू डिफरेंट डिफरेंट होली प्लेसेस। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं? आर यू फीलिंग जॉयफुल इन दिस हैप्पीनेस? दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो आप जब जान जाते हैं राज विद्या, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल, सो एटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा, then automatically you will become happy. Okay, and this will reduce the suffering, आपका material suffering को it will reduce. So let me just give you an example. मैं मेरा एक न्यूज से कुछ maybe 1.5 year back there was a news. Okay, तो उस न्यूज में एक आर्टिकल आया था, आई एम शेयरिंग दैट आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में। आप लोग देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन मेरा? नहीं प्रभु, देख नहीं पा रहे। नाउ नो प्रभु, स्क्रीन नहीं है प्रभु। yes, I am just sharing one more time. Now are you able to see? Bhagavad Gita 9.2. यस यस प्रभु। Yeah, so क्या लिखा है यहाँ पर, टाइटल क्या लिखा है यहाँ पर, कोई पढ़ सकता है? डिप्रेस्ड IIT स्टूडेंट प्लान्ड सुसाइड अ वीक अगो। हाँ, तो देखिए IIT का स्टूडेंट he has हैदराबाद। planned a suicide. So you can imagine the what you say situation, right? IIT में घुसने के लिए लोग 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन करते हैं, 9th से 12th 4 साल पढ़ाई करेंगे। एकेडमिक्स भी पढ़ाई करेंगे, उनका IIT का प्रिपरेशन भी करेंगे, कितना 14 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करेंगे। इतना करने के बाद जाके IIT में एंट्री होता है, और एंट्री होने के बाद भी देखिए कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, पर फिर भी कैसे सुसाइड कर रहे हैं लोग। देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हैदराबाद फाइनल ईयर स्टूडेंट, हाँ फाइनल ईयर स्टूडेंट हैज जम्प फ्रॉम अ हॉस्टल बिल्डिंग एंड कमिटेड सुसाइड एंड टुक द डिसीजन एज एक्सट्रीम स्टेप अ वीक बिफोर इटसेल्फ। हाँ, तो ये उन्होंने सुसाइड किया और उनके फ्रेंड्स को ईमेल किया उन्होंने। तो देखिए वेरी वेरी गुड बॉय, हैंडसम बॉय, एवरीथिंग ही हैज। और आपको दिखाता हूँ आगे, देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा है यहाँ पर। सो उनके ही वॉज अ वेरी वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, ही वॉज अ वेल मोटिवेटेड पर्सन। उसके पिताजी बोलते हैं कि यहाँ पर रीड, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, अनिरुद्ध वॉज अ वेल मोटिवेटेड पर्सन एंड हैड नो रीजन टू कमिट सुसाइड. He was not able to decide on what he wanted to do next. 9.9 परसेंटाइल मिला कैट के एग्जाम में, 99.9 परसेंटाइल. हाँ, कैट का एग्जाम ही हैज क्रैक्ड, IIM का एग्जाम क्रैक किया एंड ऑल्सो हैड एन इंटरव्यू फ्रॉम IIM कोलकाता, और उसमें ज्वाइन करने वाला था. मैं सोचा हाउ इंटेलिजेंट लड़का है. देखिए IIM का कैट एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, मैंने भी प्रिपेयर किया था, वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. Unless you get 99 परसेंटाइल आपका एंट्री नहीं होगा IIM में, दैट डिफिकल्ट. तो 99.7 परसेंटाइल मिला उसको, एडमिट, उसका इंटरव्यू भी क्रैक किया. उसके बाद इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, उसमें बहुत लोग निकल जाते हैं. उसके बाद उसका इंटरव्यू भी क्रैक किया, और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद सेलेक्ट भी हो गया IIM इसमें कोलकाता में सेलेक्ट हो गया इंटरव्यू के बाद, और ज्वाइनिंग भी करना था मार्च में. इतना अचीवमेंट है, फिर भी सुसाइड कर लिया. जॉब ऑफर भी आया था फ्रॉम अ टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द फर्म, जॉब ऑफर भी आया, उसके बाद भी कर लिया.
तो अभी लड़का क्या बोलता है देखिए, उसने जो ईमेल किया था उसके फ्रेंड्स को, उसमें वो क्या लिख रहा है यहाँ पर, द डिसीजन टू एंड माई लाइफ, यू आर ऑल एबल टू सी माई स्क्रीन राइट, आप लोग सुन पा रहे हैं राइट? हाँ, Yes, Prabhuji. ओके, सो कैन समवन Oh, रीड yes, दिस yes. पार्ट? दीप शिखर, कैन यू In रीड the दिस email, पार्ट? Aniruddha told his friends, the decision to end my life is purely logical based on the estimations of what the future contains. Life holds no intrigue anymore, and this daily grind is becoming more difficult with time. So yeah, this is in no way a rash decision. In fact, I decided to do this last week, and as you may have noticed, I have been the happiest I ever was this week. हाँ, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि डिसीजन खुद का लाइफ को लेने का उसका खुद का डिसीजन था, और लॉजिकली उसने डिसीजन लिया है, एंड ही वॉज द हैप्पीएस्ट, बहुत खुश भी था कुछ वीक पहले मरने के पहले। तो देखिए, हाँ, कोई रीजन ही नहीं था, फिर भी ऐसा किया, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, मिथुन? Totally misguided, bro. Misguided in life. ओके, तो सिद्धार्थ बोले मिसगाइड इन लाइफ। ओके, मिथुन प्रभु, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? आप वो साधु संघ में नहीं थे इसलिए। ओके, तो एसोसिएशन में नहीं थे इसलिए। फिर और कौन बोल सकते हैं? दीप शिखर? Are you there, Deep Shikhar? Varun Prabhu, what do you understand by this? Yeah, bro. Okay, He was Chandan Prabhu, lacking perfect knowledge. Hare Krishna क्या Prabhu, he was was lacking lacking? the perfect knowledge, which is the eternal knowledge. ओके, परफेक्ट, हरी बोल। दीप शिखर, देखिए आप मेरे सबसे छोटे हैं दीप शिखर, 10th क्लास, बट ही गेव द ऑल परफेक्ट आंसर। तो लैकिंग द नॉलेज, जो हरी राज बोल। लीला का हम बात कर रहे हैं, ही इज लैकिंग दैट नॉलेज। तो सब कुछ नॉलेज है उसके पास, आईआईटी का एग्जाम टेक्निकल नॉलेज आईआईटी में है, फिर उसके बाद आईएम क्रैक करने का, एमबीए का, सेल्स का नॉलेज, एवरीथिंग ही हैज। आफ्टर दैट आल्सो इंटेलिजेंट पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड। सो इसका मीनिंग क्या है कि इवन आप टॉपर है, अगर आप इंटेलिजेंट है, आप टॉपर है, आपके पास सब कुछ है, इसके बाद भी अगर आपको लाइफ का पर्पस पता नहीं, लाइफ का गोल पता नहीं है ना, देन पीपल टेक सच रॉन्ग डिसीजंस। और ऐसा ही एक केस नहीं है, हजारों केस लाइन में लगे हुए हैं। आईआईटी खड़गपुर में तो हर साल एक ना सुसाइड होता ही है ना? यू ऑल नो दैट राइट? सो इफ यू आर अ डिवोटी, अगर आपको पता चलता कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, अगर वो लड़का भागवत गीता पढ़ता, if you attended some sessions, then he would not take the decision, right? वो decision नहीं लेता, a wrong decision. So this material intelligence जो है ना, हमारा जो material बुद्धि, ये sufficient नहीं है, it's not at all sufficient to cultivate the real knowledge. उसके लिए we have to undergo spiritual cultivation of knowledge. Okay, so this is very very important. जो आपका sessions हो रहा है, you are getting this spiritual knowledge to nourish your intelligence, and that will only help you when like difficulties come in your life, तभी ये आपको help करेगा। okay, it's very very important. So coming back to the discussion, so now चाणक्य पंडित जो है, very very famous political leader and very very famous person, चाणक्य पंडित, तो उनके टीचिंग्स में वो एक चीज बोलते हैं कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मव्रत सर्वभूतेषु यह प्रस्यति न पंडित। ओके, तो ये बहुत ही फेमस वर्स है चाणक्य पंडित जो बोले हैं। तो मात्रवत परदारेषु, सो नाउ चाणक्य पंडित इज टीचिंग अस what how we can learn this Raja Vidya, or what is the real wisdom, how we can rekindle our wisdom. तो मात्रवत परदारेषु, मात्रवत परदारेषु का मीनिंग क्या है कि जितने भी वुमेन है, all the women who are elder than us, we should see them as our mother, माँ के दृष्टि से देखना चाहिए उन्हें, and all the women who are what you say younger than us, we should see them as a daughter. Same goes with women. All the men who are elder than you, you should see them as your father, and younger as your son.
ओके, मातृवत परदारेषु, ओके, परदारेषु, जितनी लड़कियां माता बहन बहन नहीं, माता ही बोला है, और बेटी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मातृवत परदारेषु। देन परद्रव्येषु लोस्त्रवत, तो परद्रव्येषु लोस्त्रवत का मीनिंग क्या है कि दूसरों के प्रॉपर्टी में हाथ डालना नहीं है, ठीक है, मतलब क्या, दूसरों के प्रॉपर्टी को सोचना है कि दैट इज लाइक जस्ट लाइक गार्बेज, मैं किसी कूड़े में हाथ डाल रहा हूँ, किसी और का प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी नहीं छीनना है, जमीन में हाँ, एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक कॉलेज में देखते हैं कि बॉयज लोग जो है दे डू ऑल, फ्रेंड को ले जाते हैं कैंटीन में, उसका पूरा पॉकेट खाली कर देंगे ये वो खिला के, लाइक दैट। देन दुर्योधन ने क्या किया था पांडवास के साथ, उनका प्रॉपर्टी के लिए कितना उसको फाइट मारा था, है ना, हाउ मच दुर्योधन फाइटेड फॉर द प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि एक सुई का जितना जमीन भी देगा नहीं, एंड क्या हो उसका हाल लास्ट में, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। सो परदारेषु लोस्त्रवत मतलब अदर्स, दूसरे लोग का, वन हैज टू बी ट्रेन टू सी अदर्स प्रॉपर्टी जस्ट लाइक गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। एंड देन मातृवत परदारेषु मतलब वी हैव टू सी अदर वुमेन एज मदर। तो इसके लिए एक महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज करके थे, वेरी 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 ग्रेट किंग, वन ऑफ वेरी ग्रेट किंग शिवाजी महाराज। तो व्हेन ही यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट मुगल्स, तो वो बहुत अच्छा फाइट करते थे, मुगल्स लोग को बहुत डिफीट किया उन्होंने, महाराष्ट्र में स्वराज का स्थापना किया, एंड वेरी वेरी वैलियंट फाइटर। तो एक बार उन्होंने एक मुगल के राजा को हरा दिया। अब हरा दिया तो क्या, वहां पर उस टाइम में कैसा होता है कि अगर हरा दिया तो वो सब उनका फोर्ट, उनका किला ले लेंगे, उनके जितने भी पत्नियां हैं, जितने सब लोग कैदी बना देंगे। तो उनके जो शिवाजी महाराज के जो मंत्री वो लोग जो थे, कमांडर्स और लोग, तो वो लोग एक बहुत ही सुंदर रानी को लेके आए कब्जा करके शिवाजी महाराज के पास, सो दैट उनको मतलब क्या बोलते हैं ना कि भोग करने के लिए क्या थे ना, उस वैसे लेके आए। बस शिवाजी महाराज ने उनको बहुत डांटा कि हालांकि हमने कब्जा किया है पर ये रानी है और ये मेरे माँ के समान है, ओके, लाइक अ मदर ही रेस्पेक्टेड शिवाजी महाराज, मातृवत परदारेषु, okay, so then coming to the third line of the shloka, atmavrat sarva bhuteshu, it means that one who is trained to think all the living entities as oneself, okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, all the living entities as oneself। इसका मीनिंग क्या है कि सब हमारे बराबर सब लोग को समझना चाहिए। जैसे कि अभी समझे बहुत ही हॉट सनी डे है, बहुत धूप है बाहर, हाँ, और आपका कोई दोस्त बाहर से आया है आपसे मिलने के लिए घर में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा कुछ बिठाएंगे, पानी देंगे, राइट, और वो भी वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि मुझे पानी चाहिए। सो यू आर ट्रीटिंग देम लाइक योर सेल्फ ओनली। आप भी अगर बाहर से आएंगे तो आप भी पहले पानी पियेंगे कि नहीं, है ना, सो दैट इज वॉट वी हैव टू ट्रीट। तो एक इसके लिए एक वेरी गुड स्टोरी इज देयर सिब्बी राजा के बारे में, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, राजा सिब्बी चक्रवर्ती करके थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। तो क्या हुआ, वो अपने प्रजा को, प्रजा मतलब वो सबको, जीव जंतु पंछी एनिमल सबको, ही यूज्ड टू सी विद द सेम विजन कि ये भी मेरी प्रजा है। तो एक बार एक डॉ मैंने कि कबूतर, वो उड़ के आ रही थी, हाँ, और उसके पीछे एक चील लग गई, ईगल, उसको खाने के लिए, एंड वो उड़ के राजा के पास आ गई बालकनी में, और राजा से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज गिव मी योर शेल्टर, दिस कबूतर इज कमिंग, दिस चील इज कमिंग एंड शी विल ईट मी, सो प्लीज हेल्प मी। तो राजा ने उसको अपने आश्रम में लिया, और जब वो चील वहां पर आई तो उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट ईट दिस कबूतर, शी हैज टेकन माई शेल्टर, मेरा आश्रय लिया है, तो मैं एज अ राजा मेरा धर्म है कि मैं मेरे प्रजा को प्रोटेक्शन दूंगा, तो आप इनको नहीं खा सकते। तो चील ने बोला कि मैं भी तो आपका ही प्रजा हूँ, तो मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, तो ये तो मेरा खाना है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी, तो मैं क्या करूं। तो राजा ने क्या किया, ठीक है अभी चील ऐसे बोल रही है, तो उनके एक थाई से, थाई मतलब समझ ना, हाँ, झांग इसको क्या बोलते हैं, थाई, हाँ, इससे चील के बराबर का मांस काट के उसको मेजर किया, चील को एक तराजू में रखा और खुद के मांस को काटा, उसको तो फ्लैश खाना था, चील तो मांस ही खाते हैं, राइट, काट के तराजू पे रखा ताकि उसको वो उतना इक्विवेलेंट उसको दे पाए। आप लोग समझ पाए, राइट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यस प्रभु जी। आप लोग को समझ में आ रहा है?
एनी Prabhu. कोई डाउट्स तो मुझे जरूर पूछिएगा. ओके, एनी डाउट्स यू हैव यू कैन Yes, yes, आस्क मी इन Prabhu. बिटवीन. ओके, तो तराजू पे रखा, बट जो चीली कबूतर बहुत हैवी है, वो उतना हुआ नहीं. उसने अपने दूसरे पाव से और थोड़ा फ्लैश काटा और फिर वहां पर रखा, फिर भी वो नीचे हैवी है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है. तब क्या करेंगे? तो राजा ने बोला कि अभी तो ये तो हो ही नहीं रहा है. तो राजा क्या किया, खुद जाके तराजू के ऊपर जाके बैठ गए कि आप मेरा ही बलिदान ले लीजिए. और जैसे ये हुआ तो जो कबूतर था, इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ देवता, और जो चील था वो भी देवता में उनका रूप ले लिया. तो जो देवता लोग थे, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब देवता, दे वर टेस्टिंग द किंग. किंग का परीक्षा ले रहे थे कि ये सच में अपने प्रजा के लिए सोचता है कि नहीं, सच में सब लोग को एक समान देखता है कि नहीं. ओके, तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आत्मव्रत सर्वभूतेषु, तो ये हमें चाणक्य पंडित बोल रहे हैं. ठीक है, सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हम लोग को सबके समान एक साथ देखना चाहिए. कभी कभी कोई लोग अपने फ्रेंड्स को लेके जाते हैं कहीं पर बाहर, किसी फ्रेंड को अपना बाइक दे दिया घुमाने के लिए, वो बाइक चलाया, बाइक को पंक्चर करके ला के रख दिया. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, बेसिक एजुकेशन मतलब एटिकेट शुड बी देयर. ओके, नाउ अभी चाणक्य पंडित ने ये 3 चीजें बोली है. हाँ, राज विद्या को सीखने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस कम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एजुकेशन. एजुकेशन क्या है? सो क्या आप लोगों को पता है एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है? एनीवन कैन गेस? जस्ट वन गेस. Educary. Education. Educary, correct. So this word has come from educary. So just let me give an example. What is the real meaning of education means? कि जैसे रेन का जो पानी आता है वो शुद्ध होता है एकदम. रेन वाटर इज वेरी वेरी प्योर. तो जब वो पानी जमीन पे गिरेगा तो जमीन कैसे रहेगा, वो वही कलर लेगा, है ना. अगर जमीन का कलर लाल है तो पानी लाल बनेगा, और जमीन का कलर काला है तो पानी भी काला बनेगा, है ना. तो उसी प्रकार हम लोग भी शुद्ध है. वी आर ऑल्सो प्योर सोल्स, शुद्ध आत्मा है. पर जैसे हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं और जिस संगत में हम लोग रहते हैं, हम लोग वैसे ही बनते हैं, है ना. अभी पानी अभी समझे लाल हो गया, काला हो गया, तो क्या करेंगे, उसको डिस्टिलेशन करेंगे, वी प्यूरिफाई द वाटर, एंड प्यूरिफाइंग द वाटर बैक इट अगेन बिकम प्योर. इन द सेम वे नाउ वी हैव गॉट कंटेमिनेटेड बाय द रॉन्ग एसोसिएशन. बचपन से टीवी देख के, गलत गलत चीजें मोबाइल में देख के, wrong association, everything wrong things we have done. So now this educary is coming into picture, the spiritual education, Raja Vidya, the wisdom. Okay, so this opportunity we have got. So now we can purify ourselves, we can distill ourselves again. खुद को फिर शुद्ध बनाने का प्रोसेस है. Okay, education, the spiritual education, Raja Vidya. तो this we have to take it very very seriously. हाँ, तो जैसे सिंपल अगर मैं बोलूँगा तो अभी मैं आप लोग से बोल रहा हूँ, ठीक है. सो देयर इज अ माइक इन माय कंप्यूटर, और माइक से वहां पर आपकी तरफ आवाज जा रहा है, आप स्पीकर से आवाज सुन पा रहे हो. हाँ, तो अगर कोई छोटा बच्चा रहेगा तो बच्चे को ये बात समझ में आएगा क्या? उसको लगेगा कि स्पीकर से आवाज आ रहा है. विल इमेजिन दैट ओनली, राइट, है ना. तो इन द सेम वे ही डजंट नो हु इज बिहाइंड द स्पीकर. समवन कहीं दूर से कोई बात कर रहा है, वो ट्रांसमिट होके नेटवर्क के थ्रू स्पीकर में आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि देयर इज सम पर्सन बिहाइंड दैट. सिमिलरली आज के जो साइंटिस्ट है, ऑन द नेम ऑफ एजुकेशन, दे आर जस्ट रिसर्चिंग डेड मैटर. जो भी डेड मैटर है, सॉइल को रिसर्च किया, उस सॉइल में इतना इतना सोने का वैल्यू है, और थोड़ा डिगिंग किया, उनको कुछ यूरेनियम मिल गया, पेट्रोल मिल गया. डेड मैटर को रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च करके बहुत खुश हो रहे हैं. हरी बोल, इतना अच्छा अच्छा मिला हम लोग को, नीचे ये मिला वो मिला, अरे खुश हो रहे हैं. बड़े बड़े पेटेंट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं डेड मैटर में रिसर्च करके. पर उनको ये पता नहीं है वो डेड मैटर को कंट्रोल कौन कर रहा है. डेड मैटर इज फ्रॉम नेचर. सो हु इज कंट्रोलिंग द नेचर? गॉड इज कंट्रोलिंग, राइट. सो जस्ट लाइक दैट चाइल्ड जिसको लगता है कि स्पीकर से आवाज आ रहा है, उसी प्रकार साइंटिस्ट आर आल्सो डूइंग द सेम मिस्टेक. दिस इज मैटेरियल एजुकेशन. आप लोग मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो क्या? यस प्रभु जी. ओके, अदर्स? Yes, Prabhu. प्रियंका माता जी, कृतिका माता जी, मिथुन, दीपशिकर, Yes, Prabhu ji. क्लास में.
दीपशिखर चले गए, ठीक है। तो ही डजंट अंडरस्टैंड दैट अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे कि कोई अगर कठपुतली होती है तो हाथ में से एक पर्सन उसको ये करता है, क्या बोलते हैं, मैनेज करता है, हाथ हिल रहा है उसका, सब कुछ हो रहा है। तो बच्चे को क्या लगता है, मम्मी मम्मी देखो वहां पर एक कठपुतली है, कठपुतली नहीं, वहां पर देखो वो डॉल ऑटोमेटिक हिल रहा है। बच्चा बोलता है ना ऐसे, पर हु इज कंट्रोलिंग दैट डॉल? एक इंसान कंट्रोल कर रहा है ना। So this is what we have to understand. Okay. So similarly, our body जो है ना, this is controlled by us. हम एक आत्मा है और हम हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं. This you have to understand, very important. और ये जो पूरा नेचर है, पूरा सराउंडिंग है, ये भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जो बारिश हो रही है, सब कुछ जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब कौन? भगवान ही तो कर रहा है, राइट? सुबह सुबह हम लोग को काम करने को जाना है, तो देर इज ए वेरी वेरी ब्राइट सनलाइट, ताकि हम लोग उजाले में काम कर सके। रात में हम लोग को सोना है तो शीतल लाइट है, मून लाइट, वेरी लाइट, कूलिंग, सूदिंग, वेरी मून लाइट भगवान हम लोग को दिए हैं। देन फॉर ब्रीदिंग सच प्योर एयर दिया है हम लोग को, सांस लेने के लिए पानी दिया है, सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर देंगे हम लोग के लिए, है ना। सो दिस इज मीन्स द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीजें यहाँ पर है, दिस आर प्रोवाइडेड बाय गॉड, भगवान इसे दे रहे हैं। दिस इज रियल एजुकेशन। ओके, देन coming to next point in that. So body is just like an instrument and we are acting to instrument. Okay, so now education के लिए let's go step by step. मतलब education का definition आपको बोल दिया है, what is spiritual education and what is material education. अभी उसमें अंदर थोड़ा deep में आते हैं, step by step. हाँ, तो 5 प्रकार के, I'll tell you 5 steps. Okay, so first step of education is to accept God, कि भगवान को हम लोग को मानना चाहिए। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम लोग को भगवान को जब हम लोग मानेंगे, देन वी अलाइन विद गॉड। अलाइन विद गॉड का मीनिंग क्या है कि जैसे आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो अगर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा कॉलेज में, यस और नो? अटेंडेंस शुड बी देयर। आफ्टर गिविंग अटेंडेंस यू हैव टू अलाइन विद द रूल्स ऑफ द कॉलेज, कि आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। सो यू आर अलाइनिंग विद द कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशन। सिमिलरली यू अलाइन विद गॉड, पहले भगवान को एक्सेप्ट करो, फर्स्ट स्टेप, देन यू अलाइन विद गॉड। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज दैट एक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड। जब भी आप कॉलेज में अलाइन हो जाते हैं, देन व्हाट यू डू, आपके टीचर्स लोग कुछ आपको बोलते हैं कि आप कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ असाइनमेंट करो, तो उनके लिए आर डूइंग दैट थिंग, राइट? सो इन द सेम वे यू हैव टू अलाइन, you have to act for the pleasure of God. How you do that? By reading scriptures. भगवान क्या बोलते हैं कि आप जप करो, मुझे याद करो, that chanting हम लोग कर रहे हैं। You have to read scriptures, भागवत गीता। We take प्रसादम, है ना, हम प्रसाद लेते हैं, and हम लोग किसी का बुराई नहीं करते, we don't harm others, yes or no? So this is how we are aligning and we are acting for the pleasure of God. Point number 3. अभी आप भगवान के क्या बोलते हैं, सुख के लिए, फॉर प्लीजिंग कृष्णा यू आर एक्टिंग, एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज यू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड मीन्स व्हाट? वंस यू बिकम मैच्योर, जो आप मैच्योर हो जाते हैं भक्ति में, देन लाइक आवर मेंटर्स आर देयर, लाइक माधव वृंदावन प्रभु इज देयर, इज अ मेंटर, इज आवर काउंसलर, इज गाइडिंग अस, राइट? सो लाइक दैट यू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड देन फाइनल स्टेज इज दैट you develop love for God. Okay, on this stage भगवान जो बोलेंगे आप वही करेंगे। जैसे कि फॉर सिंपल एग्जांपल इज हनुमान का एग्जांपल, हनुमान जी। तो हनुमान जी वेरी वेरी प्योर डिवोटी, भगवान ने जो बोला है वो वही किए हैं पूरा, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है। दिस इज व्हाट आवर वैदिक एजुकेशन टीचर्स अस। एंड सर्विस एटीट्यूड, जो हनुमान जी का सर्विस एटीट्यूड था राम भगवान के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हम लोग को ना हमारे थॉट्स को, वी शुड केयरफुली वॉच अवर थॉट्स, वॉच योर थॉट्स, बिकॉज दे विल बिकम वर्ड्स। जो हम सोचते हैं वो शब्द में बदल जाता है ना। देन वॉच योर वर्ड्स, दे विल बिकम एक्शन। हम लोग जो बोलेंगे वो हम लोग करेंगे, वो एक्शन बन जाएगा। वॉच योर एक्शंस, दे विल बिकम योर हैबिट्स। हमें जो करेंगे हमारा हैबिट बन जाएगा, बार बार वो चीज करेंगे, हैबिट बन जाएगा। और जो हमारा हैबिट, वॉच योर हैबिट्स, अदरवाइज दे विल बिकम योर कैरेक्टर। बाबा रिपीट करके आपका कैरेक्टर वैसे बन जाएगा। और अगर आप कैरेक्टर को बराबर से नहीं देखेंगे, देन इट विल बिकम योर कल्चर।
ओके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये आप समझ पाए क्या पॉइंट जो बोला अभी? यस प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट. प्रणय प्रभु, आदित्य प्रभु. Watch your words, they will watch your thoughts, they will become words. Okay, then watch your words, they will become actions. Watch your actions, they will become your habits, and watch your habits, they will become character. Watch your character, they will become your culture. This is how our culture is made. Okay, and this is how when we do action we behave. So how do we behave with others? This is very very important to understand. So coming to that point of behavior, just a minute. Watch your habits, they will become your character. तो ये मुकुंद उपनिषद और कथा उपनिषद में ना, ये आपने स्टोरी पहले भी सुना होगा राइट, कि दो बर्ड्स एक झाड़ पे है और एक बर्ड है कि फ्रूट खा रहा है और दूसरा बर्ड इज जस्ट वाचिंग दिस एक्शंस राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी बिहेव राइट वी हैव टू लाइक थिंक दैट उसके अंदर भी सोल है. इट इज नॉट एन जस्ट पर्सन. ओके, कोई कृष्ण बुक में एग्जांपल दिया है राइट बर्ड का, आप लोग को पता है राइट एग्जांपल बर्ड का, एक परमात्मा और एक जीवात्मा है, सुना है राइट ये वाला? नहीं प्रभु जी, नहीं पता, प्लीज थोड़ा बताइए. हाँ प्रभु. ये कथा उपनिषद और मुकुंद उपनिषद में ये स्टोरी आता है कि एक बर्ड जो है वो एक झाड़ पे, दो बर्ड झाड़ पे बैठे हैं. वन बर्ड इज जस्ट ईटिंग द फ्रूट्स and other bird, what is the other bird doing? It is watching the activity of that bird, what that bird is doing. So it means that in our body we have two things, one is soul and one is super soul. आत्मा परमात्मा हमारे बॉडी के अंदर ही है. ओके, सो परमात्मा जो जैसे हमारे एक्शन को देख रहे हैं, हम लोग क्या एक्शंस कर रहे हैं. ओके, वी आर सफरिंग, वी आर हैप्पी, वी आर डूइंग ऑल रॉन्ग थिंग्स. बट व्हेन यू कल्टिवेट दिस नॉलेज, दिस राज विद्या जब आप कल्टिवेट करेंगे, then you can just the time when you turn your face towards the Paramatma, जब देखेंगे, that's all, you will get liberated from this suffering. Okay, तो बस भगवान नहीं चाहते कि आप मेरे तरफ देखिए, मेरे पास आइए. So this is very very important. So जब भी आप लोग दूसरे एनिमल्स को देखते हैं, दूसरे जीव को देखते हैं, जैसे चिकन हो गया या गोट हो गया या फिश हो गया या एनी एनिमल, काउ, so you should see them that they are soul. Okay, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, कुछ शर्ट्स पहना है राइट, तो ये आपके बॉडी को अपने शर्ट पहना है. इन द सेम वे दोज एनिमल्स आर एक्चुअली सोल, दे आर लिविंग एंटिटी. हाँ, दे आर नॉट जस्ट नॉन लिविंग थिंग कि हम उनको मार के उनको हार्म करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो चाणक्य पंडित ने दो चीजें बोली थी राइट. दो टाइप के लोग पंडित होते हैं. लास्ट लाइन जो श्लोका का था चाणक्य पंडित का, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मव्रत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित. तो एक पंडित वो होते हैं जो सबको व्हाट यू से इक्वल विजन से देखते हैं. हाँ, कि एवरीवन इज इक्वल, एवरीबॉडी इज सोल, दैट इज फर्स्ट पंडित. ओके, एंड सेकंड पंडित इज दैट जो क्या बोलते हैं, अपने वुमेन या अदर पीपल को दे सी एज देयर मदर, वुमेन को मदर के रूप में देखेंगे. मातृवत परदारेषु. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाणक्य में हमें बात बोल रहे हैं पंडित के बारे में. एंड देन जस्ट लाइक आई जस्ट लिटिल बिट एक्सप्लेन यू मोर ऑन दिस पॉइंट कि सीइंग एवरीबडी एज इक्वल. तो समझिए कोई ट्रक चला रहा है, हाँ, एनीबडी इज ड्राइविंग अ ट्रक, इज अ वेरी बिग व्हीकल, और कोई एक लूना चढ़ा है. लूना किसी ने देखा है पहले? लूना पता है क्या है? व्हाट इज लूना? यू नो लूना क्या है? लूना साइकिल वाला मोटर रहता है क्या, मतलब वो पेडल भी रहता है उसमें. हाँ, करेक्ट, वेरी वेरी स्मॉल मोटर. सो इफ समवन इज ड्राइविंग अ ट्रक एंड देयर इज अ लूना गोइंग फ्रॉम दिस साइड, तो उसको अगर वो पूरा जाके ठोक देगा, तो छोटा लूना है, क्या करना है, तो ठोक दो इसे.
तो इज इट राइट थिंग टू डू? गलत है, राइट? ये बात है ना, नोबडी विल डू लाइक दैट. सो इन द सेम वे हमारे पास कुछ पावर हो सकता है, वी आर हैविंग सम इंटेलिजेंस. कुछ और जीव है जिनके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है, चींटी के पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है, छोटी चींटी के पास. सो इट डजंट मीन दैट वी जस्ट गो एंड किल द चींटी. चींटी के अंदर भी सोल है. ओके, so when you cultivate this knowledge, when you hear from scripture, when you chant sincerely every day, then you will consider every living entity as a soul, every creature as a soul with equal vision. तभी आप एक चींटी को भी नहीं मारेंगे. Okay, this is very very important to means understand. Then this is the actual test of our education. हमारा education हमें क्या सिखाता है, ये उसका टेस्ट है कि हम किसी और को मारते हैं, किसी और जीव को, निर्दोष जीव को, कि नहीं मारते हैं. दिस इज द एक्चुअल टेस्ट ऑफ आवर एजुकेशन. देन प्रभुपाद, जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो सब लोग को उनके बच्चों के जैसे ही वो कंसिडर कर रहे थे, जस्ट लाइक देयर चिल्ड्रन. दे आर अनकल्चर्ड, दे आर हिप्पीज, वो लोग गलत काम कर रहे हैं, बट ही वॉज जस्ट कंसिडरिंग देम एज देयर चिल्ड्रन एंड वेरी वेरी कंपैशनेट ओवर देम. व्हाई? बिकॉज ही हैज दैट नॉलेज, राज्य विद्या. वही हिटलर को देखिए, जर्मनी में क्या किया हिटलर ने, जूस और जर्मन को किया कि ये जर्मनी जूस है तो जूस को मार दो. सब लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल के उनको जला जला के मार रहे थे. काले गोरे का डिस्टिंग्विश कर दिया, स्लेव बना दिया अमेरिकन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने अफ्रीकन लोगों को. सो दिस इज व्हाट इज मटेरियल एजुकेशन. दे डोंट नो एनीथिंग, जस्ट इट विल क्रिएट क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस इन द होल सोसाइटी. ओके, तो प्रभुपाद को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू यू डिफाइन योर फॉलोअर्स, आप अपने फॉलोअर कैसे डिफाइन करते हैं. तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि माय फॉलोअर्स आर परफेक्ट जेंटलमैन. परफेक्ट जेंटलमैन का मतलब क्या है कि टू एक्सेप्ट द वैदिक अथॉरिटी एज इट इज. जस्ट लाइक आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, जो बोलते हैं, सेम प्रकार वी एक्सेप्ट द वैदिक अथॉरिटी. दिस व्हाट प्रभुपाद इज टीचिंग अस. एंड सेकंड, टू गेट द वैदिक एजुकेशन. तो वैदिक एजुकेशन कहाँ से मिलेगा आपको? अब ये वैदिक एजुकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? हाँ, कहाँ से मिलेगा? कौन से? यहाँ पर कोई बोल सकता है? गुरु से मिलेगा प्रभु जी, स्क्रिप्चर से मिलेगा. परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर. गुरु से मिलेगा वैदिक एजुकेशन. अगर आपके पास बुक्स भी है बहुत सारा, even if you read the books, right, that knowledge will not be going inside. Okay, so unless you get the education from guru, unless you learn from a guru, then only you will get the actual Vedic education. अगर आप कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो you don't just read the books, right, you take admission in the college, जो टीचर्स बोलते हैं उसको प्रैक्टिस करके पढ़ाई करते हो, right, not just books पढ़ के. you cannot just do anything like that, है ना. this same thing goes with Vedic education. कृष्ण भगवान खुद ही हैड अ गुरु, राइट, संदीपनी मुनि. यहाँ पर फोटो है, देखिए, कृष्ण भगवान और बलराम को सिखा रहे हैं. तो गुरु को उन्होंने प्रसन्न किया, सैटिस्फाइड इस गुरु, गुरु को दक्षिणा दिया, एंड बाय दैट उनको गुरु का आशीर्वाद मिला. सेम चीज राम भगवान, और विश्वामित्र मुनि ने जो बोला है उनके साथ गए, उनसे ट्रेनिंग लिया है, बहुत सारे असुरों को वध किया है, का सेवा किया, और उसके द्वारा उनको उनका आशीर्वाद मिला. सो भगवान खुद हमें दिखा रहे हैं कि यू शुड टेक योर एजुकेशन फ्रॉम गुरु, नॉट जस्ट फ्रॉम मंडेन बुक्स यहाँ वहाँ से. दिस इज नॉट द रियल एजुकेशन. ओके, एंड वो भी जानने के लिए आपका सेशन हुआ था, राइट, आइडेंटिफाइंग स्पिरिचुअल गाइड पहले हुआ था. हाउ टू आइडेंटिफाई स्पिरिचुअल गाइड. कोई बोगस गुरु के पास जाना नहीं है जो आस्था चैनल पे आता है, टीवी पे आता है, ये वो बोलते हैं. यू शुड नॉट डू लाइक दैट. जेन्युइन है कि नहीं, आइडेंटिफाई एंड देन फॉलो गुरु. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमारे जो एक्शंस है, इट विल टर्न इनटू आवर बिहेवियर. सो बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू वी बिहेव विथ आवर पेरेंट्स, विथ आवर टीचर्स, हाउ डू वी बिहेव विद देम. एल्डर के साथ कैसे बिहेव करते हैं? वी शुड बिहेव विथ रेस्पेक्ट, है ना. इज वेरी वेरी बेसिक सेशन जो मैं आप हो रहा है ना, दिस वेरी वेरी बेसिक थिंग आपको यहाँ पर मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, very very basic etiquette of spiritual knowledge. This will not learn anywhere. कॉलेज में कभी सिखाया जाता नहीं ये सब चीजें, है ना. सो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा. 15 more minutes and end the session. Okay, so will पेरेंट्स के साथ, एल्डर के साथ, टीचर के साथ, you have to
बिहेव इन अ वे विथ फुल रेस्पेक्ट. और जूनियर के साथ कैसे बिहेव करते हैं? विद जूनियर्स हाउ विल यू बिहेव? With compassion, Prabhuji. कंपैशन. ऐसे नहीं कि कॉलेज में जूनियर्स है तो रैगिंग कर लिया, पकड़ लिया उसको, थोड़ा उसको मार दिया, रैगिंग कर लिया उसका, ये वो के. नॉट लाइक दैट. दिस इज व्हाट मेटेरियल एजुकेशन टीचर्स अस. ठीक है. सो बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी देखिए धृतराष्ट्र थे. ओके. तो आप सोचिए कि आप एक धृतराष्ट्र राजा है और आप है युधिष्ठिर महाराज. तो धृतराष्ट्र ने कितना अत्याचार किया युधिष्ठिर महाराज के प्रति, है ना, पांडवों के प्रति. तो अभी आप अगर युधिष्ठिर महाराज की जगह पे होते तो आप क्या करते? हाँ, क्या करते? सोचिए सोचिए कि आप युधिष्ठिर महाराज है. हाँ, आपने पूरा युद्ध जीत लिया है. हाँ, अब धृतराष्ट्र आपके सामने है, तो अभी आप क्या करेंगे? धृतराष्ट्र ने इतना अत्याचार क्या था, तो व्हाट यू विल डू? बात नहीं करेंगे प्रभु जी. ओके, बात नहीं करेंगे. क्यों बात नहीं करेंगे? प्रभु जी बहुत अत्याचार किए. ओके, एनीवन एल्स? गुरुजी मृत्यु दंड. धृतराष्ट्र को मृत्यु दंड देंगे. ओके, मृत्यु दंड देंगे. ठीक है. प्रणय प्रभु, रमेश. प्रभु जी, I will try to forgive them. Sorry. ओके. क्या? धृतराष्ट्र को अर्जुन जी का एक धनुष लेंगे, उसमें हरि नाम का एक लगाएंगे बाण, हम मार देंगे. रिकी प्रभु बोल रहे कि धृतराष्ट्र को अर्जुन के धनुष्य से, हरि नाम के बाण से मार देंगे. ओके, एनीवन एल्स? तो जेल में उनको मतलब जैसे उनको स्पिरिचुअल मतलब ब्लाइंडनेस है ना, वो देख नहीं पाते मतलब फिजिकली और स्पिरिचुअली भी. तो उनको मतलब क्या है, गुरु की मदद से उनको भी थोड़ा मतलब एलिवेट मतलब एनलाइटन करेंगे. तो ऐसा करूंगा. परफेक्ट परफेक्ट. तो मैक्सिमम ऑफ यू गिव द रॉन्ग आंसर. रमेश और वरुण प्रभु ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं. धृतराष्ट्र ने क्या क्या नहीं किया? उन्होंने जब द्रौपदी का अत्याचार मतलब वस्त्रण हुआ, उन्होंने स्टॉप नहीं किया उसे. जब गैम्बलिंग हुआ तो उसको स्टॉप नहीं किया. यहाँ तक कि लाक्षागृह के प्लान में भी वो शामिल थे, वो तभी भी स्टॉप नहीं किया. ये सब करने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया. जब उनके भाइयों को उन्होंने बोला कि देखिए, जब हमारे पिता गुजर गए थे, जब वो चले गए थे, दैट टाइम धृतराष्ट्र ने हमको आश्रय दिया. ही टुक केयर ऑफ अस. और अभी हम लोगों ने युद्ध में उनके सब बच्चों को मार दिया. ऑल दिस सन्स आर डेड. सो वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, वृद्ध हो चुके हैं, बहुत ही डिस्टर्ब है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ हिम. दिस इज कंपैशन. दिस इज योर बिहेवियर. हाउ डू यू बिहेव विथ योर सीनियर्स? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ युधिष्ठिर महाराज. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं मारना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए, ये सब नहीं करना है. ठीक है. ओके. देन नेक्स्ट इज कमिंग इज हैबिट्स. ओके, बिहेवियर तो आप समझ गए कैसे ट्रीट करना है दूसरों को. अभी हैबिट्स है. तो बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करना, शॉपिंग करना. सो दिस इज ऑल बैड हैबिट्स. ये छोटी मोटी बैड हैबिट्स है. पर बड़ी बड़ी बैड हैबिट्स भी है. स्मोकिंग करना है, ड्रिंकिंग करना है, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो जाना, ये सब एडिक्टिव थिंग्स, वेरी वेरी बैड हैबिट्स. सो हाउ कैन दिस बैड हैबिट्स मीन्स, ये जो बैड हैबिट्स है ना, इतना जल्दी जाएंगी नहीं, इतना आसानी से बैड हैबिट जाती नहीं है. वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट द बैड हैबिट्स. सो ओनली थिंग इज दैट यू कैन रिप्लेस द बैड हैबिट्स. आप उनको फोर्सफुली चेंज नहीं कर पाएंगे. ओके, यू हैव टू रिप्लेस द बैड हैबिट्स विद गुड हैबिट्स, एंड दिस विल हैपन बाय ABCD फॉर्मूला. ओके, कुछ बोलना आते रमेश? Yeah, Prabhuji, by cultivating the spiritual knowledge. Correct. This happens by ABCD formula. A for association, if you come in association of devotees. Okay. Then B for book reading, correct. C for chanting, and D for कृष्ण डाइट. our diet. हम लोग क्या खाते हैं. तो भक्तों के संग में आने से ही A for association, B for, सब लोग बोलिए, what is B? बुक रीडिंग. Book reading. C for Chanting. and D for डाइट. डाइट, यानी कि कृष्ण प्रसाद. ओके,
So when you follow this formula of ABCD, right, automatically your habits will develop. Good habits will develop. No need to forcefully remove the bad habits. So automatically चले जाएंगे. Okay. This is what you are getting over here. Is opportunity. तो इसे मिस मत कीजिएगा. सेशंस जो हो रहा है, आपका कैंप्स हो रहा है, वॉइस में सैटरडे नाइट स्टे का फैसिलिटी है. So please don't take it cheaply. Okay, take it seriously. This will only actually help you to get out of the addiction, especially the wrong addiction of seeing wrong websites. Very prominent among all the youths. इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. आपके हाथ में ही माया है. ठीक है, very difficult. So this cultivation of good habit, association of devotees, ABCD formula, this will only help you to come out of that. Okay. Then coming to next is डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, अभी आपने अपना बिहेवियर समझ गए क्या है, आपका हैबिट सुधार लिया. अब डिसिप्लिन से कैसे जीना है, हाउ टू ओबे, हाउ टू सेल्फ कंट्रोल, वो हमें सीखना चाहिए. तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हनुमान जी. जब हनुमान जी को बोला गया था कि आपको सीता मैया को लेके आना है, तो सबसे पहले वो वहाँ पर he went to that महेंद्र माउंटेन. सबसे ऊपर वहाँ पर चढ़े, अपने हाथ जोड़ के अपने आंख बंद करके मेडिटेट किया. किससे मेडिटेट किया? उनके पिताजी के ऊपर, वायुदेव के ऊपर मेडिटेट किया. देन ही मेडिटेट ऑन हिज गुरुदेव से उन्होंने क्या बोलते हैं, मर्सी, कृपा का विनंती किया. एंड देन ही मेडिटेट ऑन लॉर्ड राम, भगवान जिनके लिए कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने मेडिटेट किया. सो दिस इज कॉल्ड एज ओबीडियंस. ओके, very important quality. He's obeying his authorities, and by that he got the blessings, and because of that he was successful. Then comes, after obedience, then he was very self control. जब वो जा रहे थे लंका की तरफ, तो मैनक माउंटेन करके है जो समुद्र के बीचों बीच से आ गया. very ब्यूटीफुल माउंटेन, सुनहरा माउंटेन है, ऑल फैसिलिटीज है वहां पर, सब कुछ. तो मैनक माउंटेन ने बोला कि आप इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना देर से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा. बट नहीं, विश्राम नहीं किया. गोल फिक्स्ड है कि मुझे राम भगवान सेवा करना है, तो वहां से उसको राउंड करके चले गए आगे. देन और जब आगे गए, इसका मीनिंग है सेल्फ कंट्रोल. और फिर जब और आगे गए, तो वहां पर एक बहुत ही भयानक डीमन, उसका नाम था सूरसा डीमन. तो वो डीमन आ गई, लंका में किसी को प्रवेश करने देगी नहीं. हाँ, इतना बड़ा साइज कर लिया. तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं सीता महारानी को वहां से लेके आऊंगा और फिर मैं आपके मुंह के अंदर जाऊंगा. तो वो बोले नहीं, लंका में जाने से पहले मेरे मुंह के अंदर जाना है सब लोग को. नो बडी कैन एंटर इनटू लंका. तो वो बड़ी हो गई, तो हनुमान जी और थोड़ा गुस्सा हो गए, वो भी और बड़े हो गए, वो और बड़ी हो गई, और बड़े हो गए, और बड़े हो गए. और जैसे ही इतना बड़े हो गए, इमीडिएटली एकदम छोटे होके उनके मुंह के अंदर जाके बाहर आ गए. और वह देखिए, आपका इच्छा मैंने पूरा कर लिया, मैं आपके मुंह के अंदर जाके बाहर आ गया. तो समझिए, दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उसको मैं जाने दूंगी. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? ईगो, उनका जो ईगो है, ये ईगो उन्होंने पूरा रेड्यूस करके, खुद को छोटा बना के, हम्बल वे से वहां से निकल गए. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सेल्फ कंट्रोल एंड दिस ईगो. ओके, यही कॉलेज में क्या होता है? कॉलेज में अगर कोई दो लड़के लोग हैं, दोनों में झगड़ा होता है, एक आवाज उठाया ए करके, दूसरा उठाया ए, दूसरा आवाज उठाया, और समझिए वहां से कोई लड़की चल के जा रही है, तो बस हो गया, फिर फाइट ही हो गया दोनों के अंदर, है ना. दिस कॉल ईगो, सेल्फ कंट्रोल नहीं है. ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. ओके, आप सब इसका नोट्स बना दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हाँ, ओके, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सेल्फ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जब हनुमान जी जब गए लंका में, तब वहां पर वो रावण के महल के वहां पर गए थे ऊपर से. तो ऊपर से महल ओपन था, ऊपर से जब गए तो देखा रावण वहां पर सो रहा है महल में, और वहां पर बाजू में सब उसके क्वींस, बहुत सारे क्वींस, सब लोग सो रहे हैं. उनके ऊपर बराबर से कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी बराबर से पहने हुए नहीं है. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. ही वॉच्ड ऑल दोस थिंग्स, और सब में देखे सीता महारानी कहाँ है. तो इतना सब देख के फिर बोला नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए. सेल्फ कंट्रोल, मेरा लक्ष्य है कि मुझे ओनली राम भगवान का ही सेवा करना है. राम भगवान इज माई गोल. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो राम भगवान का नाम जपते थे,
and because of that he got the self control. So same thing we are doing here. What we are doing? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this chanting is very important process. This simple chanting only will help you to get self control. Otherwise हिस्ट्री में तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, लाइन्स है कि कैसे लोग अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुके हैं. एक बाजीराव पेशवा करके थे महाराष्ट्र में, अट्रैक्टेड हो गए एक कन्या के तरफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो इतने स्ट्रांग थे कि ही वुड हैव कॉन्कर्ड द होल इंडिया, बट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट अदर गर्ल चले गए. लाइक दैट many examples are there. Okay, then coming to next point is values and skill. Cultivating values and skill, very important point. तो वैल्यूज एंड स्किल, तो इसमें ना 4 कैटेगरी आएगा. हाँ, आप नोट बना के लीजिए. 4 कैटेगरी. सबसे पहले है सोशल वैल्यू. इसमें हाँ, कल्टिवेटिंग वैल्यूज एंड स्किल, हाउ टू कल्टिवेट वैल्यूज एंड स्किल. ओके, सॉरी, सबसे पहले पर्सनल वैल्यूज, देन interpersonal values, okay, then social values, and then spiritual values. So we'll go step by step in this thing. तो personal values मतलब क्या कि हमको सच बोलना चाहिए, we should be truthful, we should be humble, बहुत ही प्राउड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए. We should be humble, we should be truthful, we should be obedient. So these are all personal values. Okay, then comes interpersonal values, means how is our relationship with others, how do we behave with others, कैसे हमारा relationship है. This also is very important matter. Interpersonal values. And then comes social values. Social values मतलब क्या, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई गाय है, very skinny cow, दुबली पतली, पूरा बोन्स दिख रहा है, प्लास्टिक खा रही है. So what you will do at that time? क्या करेंगे? Provide her food. Provide some food, right? Social values. If you're seeing some beggars over there, कोई भिखारी है, बहुत भूखे हैं, so give them some prasad. Devotees are always carrying prasad with them. Cookies या फल कुछ हमारे साथ मतलब हमेशा devotees लेके जाते हैं प्रसाद. तो उनको प्रसाद खिलाने से what they are doing is that you are actually क्या बोलते हैं, उनका spiritual journey आप start कर रहे हैं प्रसाद खिला के उनको. Okay, that is very important. So instead of giving money or doing something else, you feed them prasad. That will give them sukruti. और भिखारी को एक बार प्रसाद दिया और फिर से आएगा, फिर से प्रसाद दो उनको. ठीक है, जितने बार उतने प्रसाद दो उनको. That prasad will help him to get rid of all his bad sins and it will start his spiritual journey. Okay, it's very important. और जो अभी आप लोगों ने देखा था, जो मैं आपको दिखा था न्यूज़ का जो क्लिप था, आईआईटी में सुसाइड हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? What are we doing for this? Are we doing something for this? Yes, someone was speaking something. Preaching. Yes, Prabhuji. Correct, perfect. So that is what we have to do. या आनंद प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? Yes, Prabhuji. ISKCON सारी leading institution like IIT, IIM यहाँ पे जाके preaching work कर रहे हैं. Correct. So this is very important. We should be compassionate to other living entities and we should preach them. That's why देखिए school colleges में we should tell them to read Bhagavad Gita. We should preach them, give this Raj Vidya. Then this situation will not come. Okay. Thank you Varun Prabhu, Anant Prabhu for your answers. So इसीलिए we are doing the same thing. यहाँ पर college है, voice के बाजू में, so we are preaching them. You all are there. Most of you came from book distribution, right? I know till now also Deep Shikhar, Priyanka Mataji, they bought a Bhagavad Gita. Supratik Prabhu bought a Bhagavad Gita. All of you, most of you have come from book distribution. All these festivals in temple. This is what is preaching to college students and to youths, to school students. Okay, so this is the social value. And then coming to spiritual value. So spiritual value का meaning क्या है कि God has provided so many things. भगवान हमको इतना सारा चीजें दिए हैं, तो क्या हम भगवान के प्रति थैंकफुल है क्या? हाँ, are we thankful towards God? So how can we express our thanks to God?
भगवान ने हमको इतना शुद्ध हवा दिया है। यही हवा आप जाके हॉस्पिटल में जाइए, ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा होता है देखिए, आप तो जानते हैं राइट सुप्रतीक प्रभु। देन भगवान हमको फ्री ऑफ कॉस्ट हवा दे रहे हैं सांस लेने के लिए, पानी दिया है हमें। कोई 20 रुपए का बॉटल खरीदिए, 20-20 रुपए का पानी का बॉटल है ना, हवा पानी खाना दिया है, ग्रेन्स दिया है। और साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करके हम लोगों ने ग्रेन्स बनाया है, ये किया है वो क्या है, भगवान ने दिया है सब कुछ चीजें। इतना सबको प्रोवाइड करने के बाद भी, अच्छे फैमिली में जन्म हुआ है हमारे, सब कुछ होने के बाद भी, आर वी थैंकफुल टुवर्ड्स गॉड? हाँ, सिंपल थिंग क्या है, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर थैंक्स टू गॉड राइट, रिलेशनशिप अगर गॉड से डेवलप करना है, सिंपल थिंग क्या है, सुबह जल्दी उठना है और चैंटिंग करना है बस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। जिस भगवान ने तो सब कुछ दिया है आपके लिए, क्या आप उतना भी थोड़ा नहीं कर सकते? सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं ले सकते क्या? हाँ, दिस इज द वेरी वेरी सिंपल थिंग। इससे यू कैन डेवलप योर रिलेशनशिप विद गॉड एंड यू कैन एक्सप्रेस योर थैंक्स टू गॉड। ओके, दिस इज द स्पिरिचुअल वैल्यू। समझ गए ना? पर्सनल वैल्यू, इंटरपर्सनल वैल्यू, देन सोशल वैल्यू एंड देन स्पिरिचुअल वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कोई अभी समझिए यहाँ पर अनंत प्रभु है और यहाँ पर मिथुन प्रभु है, तो ये अनंत प्रभु बहुत ही रफ बिहेव किए मिथुन प्रभु के साथ, तो मिथुन प्रभु को अच्छा लगेगा नहीं। पर अगर कुछ गलती भी हुआ है पर पेशेंटली धैर्य के साथ बिहेव किया, सो मिथुन प्रभु विल ऑल्सो फील हैप्पी, विल नॉट गेट डिस्टर्ब, है ना? दिस आवर इंटरपर्सनल वैल्यूज। ओके, दिस इज व्हाट इज टॉट इन वॉइस। तो क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है क्या? Anyone said something? So this is what is डिस्टर्ब हो रहा है वो, मतलब फ्लक्चुएशंस हो रहा है कनेक्शन। मेरा आवाज क्लियर है क्या आप सब लोग को? इज इट कमिंग क्लियर? अदर्स? कभी कभी हो रहा है प्रो, मतलब कभी कभी डिस्टरबेंस हो रहा है। अदर्स? कृतिका माता जी, प्रणय प्रभु, रमेश, यस प्रभु। clear hai, Yes, right? Prabhu. Okay, so this is very very important to understand that we train ourselves in these values. जैसे कि ये skills और values है, these are values जो मैं आपको बोला, but skills are totally different. जैसे एक बार क्या हुआ था, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों को बोला कि युधिष्ठिर महाराज दोनों को एक टास्क दिया। युधिष्ठिर महाराज को बोला कि यू गो आउटसाइड एंड यू फाइंड समवन हु इज इंफीरियर टू यू, आपसे कि कोई छोटा है उसको आप ढूंढ के लाइए। और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बोला यू गो आउटसाइड एंड यू फाइंड समवन हु इज सुपीरियर टू यू, जो आपसे बहुत ही सुपीरियर है उनको लेके आइए। तो युधिष्ठिर महाराज गए, सब जगह पे ढूंढा, यहाँ वहां पर सब जगह पे दूसरे लोग को देख रहे, उनको लग रहा है कि मैं ही उनसे नीचे गिरा हुआ हूँ। पूरा दिन ढूंढ के रात में आए गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, बोले कि कोई नहीं है, मैं ही सबसे गिरा हुआ हूँ, आई एम द मोस्ट इंफीरियर। और फिर दुर्योधन गया बाहर, वो गया, सब ढूंढा, बोला इसमें तो ये फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है, ऐसे किया वैसे किया, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो वहां से वो आ गया और फिर आ गया। फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि युधिष्ठिर महाराज उनको बोला कि वो दुर्योधन सुपीरियर है दुर्योधन से, और दुर्योधन इज इंफीरियर टू युधिष्ठिर महाराज। एक दूसरे को वो उन्होंने समझाया। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पास्ट, दिस स्टोरी? क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? मिथुन, एनीवन? कृतिका माता जी, प्रियंका माता जी? जो फॉल्ट ढूंढता है वो मतलब इंफीरियर होता है, और सुप्रियर वो है जो फॉल्ट्स नहीं ढूंढता है। करेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दीज आर अवर वैल्यूज। द्रोणाचार्य हमें यही सिखा रहे इस स्टोरी के द्वारा। ओके, दैट वी शुड नॉट डू फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स। हाँ, एंड देन कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज कैरेक्टर एंड कल्चर। हाँ, तो अभी कैरेक्टर में आएंगे। तो कैरेक्टर का मीनिंग क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ कर दिया, बहुत मार्क्स आ गया, बहुत इंटेलिजेंट है तो आपका कैरेक्टर गुड होगा, ऐसे नहीं है। दुनिया का, मैं पिछली बार आपको सेशन में बोल रहा था राइट,
दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, उसका सबसे पावरफुल आदमी प्रेसिडेंट, प्रभुपाल के समय में था, प्रेसिडेंट क्लिंटन शायद से उस समय था, क्या किया उसने? पार्लियामेंट में उनके ही किसी सदस्य के साथ गलत काम कर दिया, है ना? एंड देन व्हाट हैपेंड? इतना इंटेलिजेंट आदमी है, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, पर फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। देखिए, सो इफ यू हैव स्किल्स बट इफ यू डोंट हैव वैल्यूज, देन दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू। और आजकल यही हो रहा है, आईटी में सब लोग पढ़ाई करते हैं, आईटी एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, एंड देन बाहर जाके सब गलत काम करते हैं। इंटेलिजेंस इतना होने के बाद भी वैल्यू नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर नीचे गिर जाता है, कैरेक्टर ढीला है। कोई गाना निकला था कुछ साल पहले, हाँ? So this is what is happening with all the people. So this spiritual education is very very important. So please take it seriously. Okay. So now एक और बात बोले थे कि if wealth is lost, then we can at least gain our wealth back. If health is lost, then we can regain our health. But if character is lost, then nothing can happen. You cannot take back your character. तो एक बार क्या हुआ था, आईटी कंपनी में एक इंजीनियर काम कर रहे थे, हाँ? तो ही वॉज इन ए वेरी वेरी गुड पोस्ट, मंथली 1 लाख रुपए सैलरी उनको मिलता था। और ये जो कंपनी थी, कंपनी में तो बहुत कंपटीशन है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर इन दिस ऑल दिस कंपनी, कॉग्निजेंट, ऑल दिस कंपनीज। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। तो उसने क्या किया, हिज कंपनी, वो कंपनी जो है ना, पेरेंट कंपनी उसकी, दे वेर इन सम टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में कामयाब हो गए अगले 6 महीने में, तो उनकी कंपनी रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ेगी, टॉप लेवल पे आ जाएगी मार्केट में, शेयर्स का सब प्राइस बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट में टॉप पे आ जाएगी, एवरीथिंग इट विल बी टॉप। पर दूसरा एक राइवल कंपनी था, राइवल कंपनी क्या बोला कि आप हमको उनका टेक्नोलॉजी का सीक्रेट हम लोग को शेयर कीजिए, सीक्रेट शेयर कीजिए एंड वी विल गिव यू मनी। तो आदमी वैसे कर रहा है। इस आदमी ने क्या किया, एक सीक्रेट दिया राइवल कंपनी को, उसको 1 लाख रुपए मिला, और सीक्रेट 1 और लाख रुपए मिला, तो हर सीक्रेट के लिए उसको 1 1 लाख रुपए मिल रहा था। और वो राइवल कंपनी ने वो जल्दी अचीव कर लिया। और ये पेरेंट कंपनी जो है, ये आश्चर्य में पड़ गई कि हमारा टेक्नोलॉजी जो है, ये कैसे क्या उन्होंने जल्दी जल्दी अचीव कर लिया, हाउ इट इज पॉसिबल। हमारा ही सेम कोडिंग लग रहा है, व्हाट कोडिंग वी हैव डन, हमारा जो स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। देन बहुत ढूंढ के इस आदमी को पकड़ा और इसको कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया। और उसके बाद उसे किसी ने भी लिया नहीं, किसी और कंपनी, 2 3 साल बहुत उसने जॉब ढूंढा, कोई कंपनी उसे लिया नहीं। लास्ट में वो उसी कंपनी के पास गया जो उसको पैसा दे रही थी, तो हमें चुरा के सीक्रेट्स दो करके। वो कंपनी ने क्या बोला कि आपने तो अपना कैरेक्टर पूरा खराब है, आपने चीटिंग किया है दूसरों के साथ, तो आप तो हमारे कंपनी में भी सेम काम करेंगे, सो वी डोंट ट्रस्ट यू, सो वी विल आल्सो नॉट टेक यू। सो इससे क्या समझ में आता है, व्हाट अंडरस्टैंड बाय दिस, रमेश? यस, Prabhuji, if character is lost, then it is beyond repair. ओके, परफेक्ट। सो दिस इज वेरी वेरी, आप लोग क्लास में हैं क्या, रमेश एंड साहिल प्रभु? Yes, Prabhu, we are in class. Yes, yes. ठीक है। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 3 things, integrity, maturity and non-envious, these 3 things are very very prominent in our character. Integrity, maturity and non-envious, किसी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दिस विल गिव अस अ गुड कल्चर। At last, with this character we can develop a good culture. Okay, this is very very important. So I summarize over here, just a short summary I will tell you now, what all things I have told you from starting. सबसे पहले I have told you about Raj Vidya, how spiritual knowledge is more important than material knowledge. And then I told you about चाणक्य पंडित ने जो बोला था मात्रवत परधारेषु, वो श्लोका we have broken it part by part and I have explained you what is the meaning of the real pandit. Looking at other women as mother, हर एक लिविंग एंटिटी का it should be like treating them like ourselves only, एक जैसे ट्रीट करना है, this thing we have learned. And then after that, what is meaning of education, वो मैं आपको बोला हूँ, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एजुकेरी का मीनिंग क्या है, दैट आई हैव टोल्ड यू. एंड हाउ वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल्स, वो हमने डिस्कस किया है. एंड हाउ योर थॉट्स विल कम इनटू वर्ड्स,
words to actions, action to habits, habits to character, and character to culture. Okay. Then we came across behavior, कैसे behave करना चाहिए seniors के साथ, juniors के साथ, equals के साथ, हमारा habit कैसे होना चाहिए, how can we replace our bad habits with good habits, वो हमने डिस्कस किया है. Then how we should be disciplined, हनुमान जी के बारे में बोला था मैं, right? How should be obedient, how should be self control, this thing we have discussed. And then cultivating good habits, good values, values are more important than skill. Okay, इससे हमारा character बनेगा, and by that we will have a good culture. Okay, so this is what we discussed in today's session. So any questions, any comments you can have, if you have, you can ask me. Okay, any question, any comments? Aditya, Deepshikar, Siddharth, Subhajit, any questions, any comments? Prabhu, I have one question. Okay. That अगर स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ऊपर नीचे हो, बहुत लाइक मतलब पता ही नहीं कि कितना ऊपर नीचे, तो तब क्या करना चाहिए एक इंसान को? ऊपर नीचे का मीनिंग मैं समझा नहीं. स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर नीचे मतलब Like sometimes it happens that sometimes 16 round and then sometimes दूसरा दिन में 16 round, after that 12, after that कभी कभी 0 हो जा रहा है, and then 0 0 0 0, after that वापस से 8 then 16, just like this. तो okay, so this is क्या करना है? the main factor over here is your association. Okay, Sahil Prabhu, आप जैसे संघ में रहेंगे ना, that association will have impact on you. Okay, so that's why for this purpose we have opened this opportunity कि you all can come at least once or twice in a month. हर week you can also come. Saturday you can come at night, you can stay in Voice. Today we had a very very beautiful program in Voice. सुबह morning program हुआ. You all enjoyed or not morning program? Very good. Morning program हुआ, dancing kirtan, then biryani feast was there, मूली के पराठे, and very nice program and sessions. Everything was there, preaching and dancing and singing and kirtan, everything. So what happens is once in a week if you get the association, because आप सब लोग घर में रह रहे हैं, अभी lockdown है, you're unable to come to temple also, not getting the association. So when you come here and when you do these things, right, automatically it will have more impact. पूरा week के लिए आपको एक क्या बोलते हैं रिचार्ज हो जाएंगे आप. पूरा वीक में नेगेटिविटी में जाना ही है, ऑफिस में काम करना है, कॉलेज में जाना है, तो बहुत गलत गलत चीजें आपके साथ होगा, बट दैट विल नॉट इम्पैक्ट यू. ओके, द एसोसिएशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग. ठीक है साहिल प्रभु? ओके प्रभु, हरे कृष्ण. आई विश, मुझे इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, you come to the Prithivardhan festival and come to the camp also this time. Don't miss it, huh? Very very important, this is for you. Okay, otherwise आप झूलते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर आप नीचे चले जाएंगे. ठीक है? Yes, Prabhu. Okay, so register yourself immediately. All of you who have told to come, that you will come. Varun Prabhu, I am requesting you also. Varun Prabhu, Sahil Prabhu, then Mithun, Tarun Prabhu, सिद्धार्थ प्रभु, आज ही रजिस्ट्रेशन कर लिए, ज्यादा लेट मत कीजिएगा. ओके, फॉर दिस मायापुर एंड प्रीतिवर्धन फेस्टिवल. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? आप लोग कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे? Hare Krishna Prabhu, I have one question. एक 1 मिनट है, आई एम वन क्वेश्चन यहाँ. हाँ एक्शन वर्ड से होता है, क्या बोलते हैं, थॉट से वर्ड्स आएगा, वर्ड से होगा एक्शन. आप जो बोलेंगे वो आप करेंगे. हाँ, एक्शन, एंड एक्शन से आपका हैबिट्स बनेगा, और हैबिट्स कंटिन्यू होकर वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा, एंड देन दैट कैरेक्टर विल बिकम योर कल्चर. ठीक है? यस आनंद प्रभु. यस Yes, Prabhuji, Hare Krishna. The question is, whenever we find that the situation is favorable, like if we go to a restaurant or something, and if we find a waiter who's talking to us very nicely, then it is easy for us to be humble, and then we treat that person with respect. But as soon as the things become unfavorable and people start to chastise us, then this feeling is lost, Prabhuji, and somehow we become rebellious.
Okay, so this will vary from time, place, and circumstance. Okay, Anand Prabhu. You should not be like very humble to outside materialistic people. If they are doing wrong activities, if they're involved in sinful activities, and you are becoming humble to them, then that is wrong. But if some devotees are there, if they are chastising you that you're not chanting your rounds properly, or if you're not doing it properly, if they are chastising you, if they are scolding you, that is for your benefit. That is for your spiritual advancement. So at that time you have to become humble. But if some outside people are doing something wrong in front of them, you have to see if it is possible. Obviously anybody will scold anyone. We are not in the pure level. हम लोग गुस्सा आएगा ही, temperature rise होगा ही, whether it be spiritual or material. Okay, but then you have to see time, place and circumstance. कैसा circumstance है, कैसा time है और कहाँ पर हूँ मैं. Okay, according to that you have to take the action. But for the case of devotees, or if you for the case of spiritual life, you should never ever get angry or rebel or do those things. Okay, if your superiors they are telling you something, you should humbly accept that. Okay, Yes, outside Prabhu. world Okay. outside world it will differ. Okay, Prabhu. Thank you, Okay. Prabhu. Okay, so then if you don't have any more questions, I'll stop over here, huh? And we'll meet again Thursday. We'll again meet. So there is MMC Thursday. आपका sorry Wednesday हम लोग मिलेंगे. Thursday को सुबह MMC होता है. So मैं देख रहा हूँ आप लोग में से कोई सुबह उठ के आता नहीं है, हाँ. तो अभी हम लोगों ने सीखा है, वी हैव टू थैंक गॉड. भगवान को हमें थैंक यू बोलना है फॉर गिविंग अस ऑल दिस थिंग्स. सो इतना छोटा बात ही करना है, बस सुबह रात में जो जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है और उठ के भगवान को बस याद करना है बाय चैंटिंग. इतना छोटा चीज है, उतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट? सो प्लीज डोंट मिस द एमएमसी and register yourself for the camp as soon as possible. Okay, Siddharth Prabhu is your coordinator, so I request Siddharth Prabhu, you please guide the boys so that they can register today itself. ठीक है, Chandan Prabhu, Deepshik, who was there, Tarun Prabhu, and who else was there, Sahil Prabhu. इस बार मिस मत Chandran Prabhu, कीजिएगा Rahul साहिल. Prabhu, Mithun Prabhu, Sahil Prabhu, Saurabh Prabhu. Okay, so you guide them and you tell them to register today itself. Okay, ठीक है. Okay then, Okay, Prabhu. we'll leave. I leave then. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, bro. Very wonderful class. Hare Krishna, Prabhu. जय श्री Thank you. प्रभुपाद. हरि बोल. प्रभुपाद का Jai कृपा है. Shri Ram. Jai.